Welcome back. So last couple of classes we have been learning control statements. So we started with what are control statements, what are the different types of control statements, and what is the use of control statements. So we have covered these two types: looping conditions, conditional and looping. So today we'll try to complete this jump statements. Out of that also break we have already seen, but we'll try to see once again. So if we use if else we use, अगर आपके पास एक कंडीशन है, based on that you want to execute this one or this one based on this value, then switch also we have talked about. So if you want to execute one of the code from based of multiple choices, then go with the switch. Then we also talked about looping statements. अगर आपको code multiple times run करना है, you want to execute the code again and again, then we go this particular looping statements. Then we talked about for loop syntax. We have seen multiple number of examples. Then we talked about while as well, do while. That was we covered, and lot of programs we covered on the patterns as well. So we'll try to continue on that. So we have next set of statements that is called as jump or transfer control statements. Transfer control statements. So pretty easy. So what is the use of this jump or transfer control statements? Very simple. You are at some line, and you want to move from that line to some other line. So that is what we use. To these statements are used to jump from one line to another line. So what are the keywords we are going to use? So we have break, continue, and return. So we have break, continue, and return. Let's start with the break. So we have already seen break keyword, right? So what is break? It is a keyword. It is a keyword. And what is the use of this keyword? It is a keyword when executed. It is a keyword when executed. It will be end of loop or switch where it is used. Where it is used. क्या है एक लाइन में? अगर ये कीवर्ड एग्जीक्यूट होता है, then it will be end of loop or switch. अगर ब्रेक एग्जीक्यूट होता है तो what is going to happen? It will be end of a loop or a switch. Now where can we use break? So break can be used inside the loops or switch. Otherwise you'll get compile time error. Otherwise you'll get compile time error. Very simple. याद रहेगा क्या करना है आपको? यूज कहां पर करना है ब्रेक स्टेटमेंट को? यू विल गोइंग टू यूज इनसाइड द लूप और इनसाइड अ स्विच. बाहर कहीं यूज करोगे तो यू विल गेट स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपाइल टाइम एरर. ठीक. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन इट इज यूज्ड? अगर इसे यूज करोगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सिंपली एंड ऑफ स्विच और एंड ऑफ लूप. लूप में आपके पास मल्टीपल टाइप्स के लूप है. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स वी हैव? फॉर है, व्हाइल है, डू व्हाइल, इनहांस फॉर लूप, कहीं पर भी यूज करोगे. अगर ब्रेक एग्जीक्यूट होता है देन दैट इज गोइंग टू बी एंड ऑफ लूप. क्लियर है? ओके. नाउ विद दिस वन लाइन ऑफ नॉलेज you will have a lot of questions to answer. So just remember this line and let me know the answers. Fine. No.
What is the output of this particular program? This will go infinite, right? क्यों infinite जाएगा? कंडीशन ट्रू है, कंडीशन कभी चेंज हो रही है क्या? नो. ओके. व्हाट अबाउट नाउ? Infinite. How many times this loop is going to run? Only once. This loop will run only once. Now, is it the end of method or only loop? अगर ब्रेक यूज किया तो what is going to happen? Only end of loop. लूप एंड होगा फिर. Method end नहीं होगा. What is going to happen? Only loop end होगा. Okay. What is the output? Even numbers print होंगे. How many times this is going to run, Aditya? One time. And how many number will print? What number will be printed? Zero, two, one. What is the output? Zero only, right? So 0 mod 2, it will be 0. And it will go inside this if and it will be end of. Simple, याद रहेगा. If you are using break, what is going to happen? अगर break execute होता है तो end of loop. That's it. Nothing fancy. Then we have next keyword, that is continue. So it is a keyword. When executed, it will be end of current iteration. It will be end of current iteration and it will continue from next iteration. And continue can be used inside the loops only. Otherwise, compile time error. So this line, very carefully see. अगर आप continue use कर रहे हो, so what is going to happen whenever continue is executed? Is it end of loop? Is it end of method? No, it is only end of current iteration. लेट्स से एग्जाम्पल, अभी मुझे क्या करना है कि लेट्स से 100 स्टूडेंट को मैसेज भेजना है. मेरे पास कुछ नंबर है, फोन नंबर्स. नाउ जब भी फोन नंबर इनवैलिड है, जैसे लेस देन 10 डिजिट है या ग्रेटर देन 10 डिजिट है, तो मुझे उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को मैसेज नहीं भेजना चाहिए, राइट? तो जो मैसेज भेजने का लॉजिक है या ईमेल भेजने का लॉजिक है, दैट शुड नॉट रन फॉर दैट पर्टिकुलर नंबर. जब भी इनवैलिड नंबर आता है, आई एम गोइंग टू स्किप दैट. क्या स्किप करोगे? जो भी लॉजिक है मैसेज सेंड करने का. सो आई एम गोइंग टू स्किप दैट लॉजिक व्हेन इफ द नंबर इज invalid. But am I stopping the process of sending the message? No, I'm continuing from next number. So that is the next iteration. So I want to send message to 100 students. I want to send message to 100 students. Now कभी कुछ होगा, किसी ने नंबर गलत दिया होगा, right? देते ना स्टूडेंट्स, फिर इनका नंबर गलत देते ना. So if the number is invalid, I don't want to continue that logic. मतलब उस पर्टिकुलर नंबर के लिए हम क्या करना चाहते हैं? स्किप करना चाहते हैं. यू वांट टू स्किप दैट. तो सेम लॉजिक अप्लाइज हियर आल्सो. कंटिन्यू. सो वेदर कंटिन्यू, इज इट अ
Is it a end of loop? Is it end of method? No. What is the end? End of that iteration, current iteration. Very simple. So what is happening? If I write continue, how many times this loop is going to run? How many times? If I write continue, बोलो. Infinite, ये infinite जाएगा. This will go infinite. Why? This will go infinite. कभी किया नहीं है ये. So this will go infinite. So I will putting this. Now सारे इवन नंबर स्किप होंगे. लूप कितनी बार चलेगा? लूप कितनी बार चलेगा? 100 times. And what is the output? इवन नंबर्स प्रिंट होंगे. 1 to 100 प्रिंट होंगे सारे. एक चेक करो एक बार. कंटिन्यू करता है क्या करता है? व्हाट कंटिन्यू डज? इसके बाद जो भी होगा वो चलेगा क्या? नहीं होगा. फिर नेक्स्ट. जैसे मुझे अभी मैंने बोला कि मैसेज भेजना है मुझे किसी को, लेकिन नंबर इनवैलिड है तो क्या भेजेंगे? नो, राइट? So what is the output? All odd numbers. Perfect. समझा कि वो ऑड नंबर्स आएंगे जब भी मेरा इवन नंबर है तो इफ के अंदर जाएगा और कंटिन्यू होगा. सिंपल. Able to make sense, right? So I will just write one thing about return and we will do combined questions on all of these three. So return के बारे में और भी हम पढ़ेंगे, but अभी के लिए बस थोड़ा इतना समझ लो. It is a keyword. When executable, it will be end of current method. So return can be used inside the method. तो जब भी रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, so that is the end of
That is the end of method directly. Now, if I write return, if you look at this, you are getting this error. What is this error? अनरीचेबल कोड. तो यहां पर आपको मिलेगा अनरीचेबल. वाई? इन सबको आएगा अनरीचेबल कोड एरर, क्योंकि इसके बाद कुछ एग्जीक्यूट नहीं हुआ इस मेथड के अंदर. दैट इज द एंड ऑफ डायरेक्टली मेथड. इसलिए आपको यहां पर अनरीचेबल, तो कभी वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं. समझे? Now instead of break, I'm now using return. So what is the output in this case? How many times loop is going to run and what value you are going to expect? Yes. एक बार 0 प्रिंट करके लूप के बाहर आ जाएगा. क्या प्रिंट होगा? अरे रिटर्न का मतलब एक लाइन में समझो. ब्रेक मतलब एंड ऑफ लूप, कंटिन्यू मतलब एंड ऑफ इटरेशन, एंड रिटर्न मतलब एंड ऑफ मेथड. तो यहां पर प्रिंट होगा 0. दैट्स इट. ये भी नहीं चलेगा. दिस लाइन आल्सो विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड. इट विल प्रिंट ओनली 0 एंड इट इज गोइंग टू बी एंड. समझे? नाउ रिटर्न का यूज क्या है? रिटर्न इज यूज टू return value from one method to another method. So we'll discuss about this as well, but abhi ke liye let's see this one. तो आपने देखा होगा कि एक ही पैकेज के अंदर बहुत सारी फाइल्स होगी. तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल दिस फाइल्स, राइट? हम बाद में इसको और भी पैकेजेस बना के रखेंगे. वी विल क्रिएट अदर पैकेजेस जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स. I will try to put all of this. This looks okay. Now, I told you that if it is return, then it is going to be end of method.
I'm just calling a method addition is equal to add, और यहाँ पर एक मेथड कॉल कर रहा हूँ मैं 200. I'm just creating a method. तो इस पर्टिकुलर मेथड से मैं कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ, जो भी नंबर भेजे हैं उनका एडिशन करके यहाँ पर. So this is also one of the use of return. So you are returning some value from this method to this method. So 300 is calculated and that is given to this particular method caller. तो यहाँ पर आपको ये मिलेगा value. So this is one of the use of return. Now I want you to answer now. Now one by one I will ask. Let's start with the Aditya. So how many times this loop is going to run? 5 times. Okay. Now, what is the output? Hmm? 3 times chalega. And what is the output? 1, 2, 3. Sure. 1, 2, 3, 4. Only 3. Look at the question once again. Try to understand this. What is happening? How the control flows. Now let's check for the I is equal to 1. What is happening? सबसे पहले 3 प्रिंट होगा. Start from the beginning. int I is equal to 1, I less than equal to 5. So I का वैल्यू कितना है 1. ठीक. 1 is less than equal to 5. False और true? True. Okay. फिर if के अंदर लॉजिक आ गया. अब I का वैल्यू कितना है? अरे इक्वल टू है, असाइनमेंट नहीं है वो. I का वैल्यू हमने 1 से स्टार्ट किया ना. सो वेदर I is less than equal to 5, ट्रू. तो कंट्रोल अंदर आ गया लूप के अंदर. I का वैल्यू कितना है अभी? 1. 1 is equal to 3, फॉल्स. तो इफ के अंदर जाएगा क्या? नहीं. फिर उसके वाला नीचे वाला लाइन प्रिंट होगा, दैट इज I. तो वहां पर 1 प्रिंट होगा. देन I प्लस प्लस. I का वैल्यू कितना बना? आगे बताओ क्या होगा? इफ के अंदर नहीं जाएगा, देन इट विल प्रिंट 2. देन I प्लस प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 5. ओके. 3 प्रिंट होगा कि नहीं होगा? क्यों प्रिंट होगा बताओ एक बार मुझे. हाँ तो 3 इज इक्वल टू 3, ट्रू. तो कंट्रोल किधर जाएगा? इफ में प्रिंट कर रहे क्या हम? नहीं प्रिंट करे ना इफ के अंदर. तो इफ के अंदर जाएगा. इफ के अंदर क्या है? I is equal to 3, that is 3 is equal to 3. तो क्या हुआ? ट्रू हो गया कंडीशन. इफ के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे 3 is equal to 3, ट्रू, राइट. फिर अंदर जाएगा. ओके. तो क्या होगा फिर? ब्रेक. तो फिर ब्रेक होने से क्या होता है? लूप स्टॉप होगा, राइट. सो लूप विल स्टॉप. तो फिर कितनी वैल्यूज प्रिंट हुई? अरे 3 किधर हुआ? 1, 2 बस. 3 के लिए वो गया नहीं उधर. तो आउटपुट बस आपका 1 and 2. If you want, I can just walk you through also. Look at this. तो I का वैल्यू कितना है? 1. 1 लेस देन 5. ओके.
आई इज इक्वल टू 3, 1 आई का वैल्यू कितना है 1, 1 इज इक्वल टू 3, फॉल्स। तो इफ के अंदर जाएगा, ठीक है, तो आई प्रिंट हो गया, आई का वैल्यू बन गया 2, 2 इज इक्वल टू 3, फॉल्स, तो 2 प्रिंट हो गया। अब आई का वैल्यू बना 3, 3 इज इक्वल टू 3, ट्रू, तो इफ के अंदर जाएगा ब्रेक, जैसे ब्रेक एग्जीक्यूट होता है, एंड ऑफ, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। यस, अच्छा, 1 2 कैसे कैलकुलेट किया? इटरेशन स्टॉप करते हैं, हाँ ठीक है, नहीं आएगा। फिर क्या क्या प्रिंट? 1 2 3, ठीक है, एक एक लाइन जाओ, मुझे बताओ। लाइन नंबर 5, सबसे पहले 1 से स्टार्ट करो। आई का वैल्यू कितना है 1, ठीक है, वेदर 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू, तो लूप के अंदर जाएगा, हाँ ठीक है, लूप के अंदर आया। फिर अभी इफ कंडीशन चेक करो, हाँ अभी 1 है आई है, तो 1 इज इक्वल टू 3, तो इसके अंदर आएगा, इसके अंदर कोड आएगा क्या? नहीं आएगा, राइट, ठीक है। फिर नहीं नहीं, यहां पर ये प्रिंट 2 पे क्यों जाएगा? इमीडिएटली यहां पर आई प्रिंट होगा ना, ठीक है। फिर उसके बाद आई प्लस प्लस 2, 2 लेस देन इक्वल टू 5, लूप के अंदर आएगा, परफेक्ट। फिर उसके अंदर इफ आई इज इक्वल टू 3, आई का वैल्यू कितना है 2, हाँ तो 2 इज इक्वल टू 3, तो इफ के अंदर आएगा, एक एक इटरेशन जाओ। सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, फॉर लूप के अंदर आया हम, ठीक है। इफ के अंदर जाएंगे हम, आई की वैल्यू 1 है, तो आई की वैल्यू कितना है 1, 1 इज इक्वल टू 3, तो इफ के अंदर जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इफ के बाद वाला लाइन क्या है, आई प्रिंट होगा, ठीक है। आई की वैल्यू कितना बना अभी 2 हो गया, तो लूप के अंदर आएगा, हाँ 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस, लूप के अंदर आया। इफ कंडीशन, इफ के अंदर जाएगा, इज इक्वल टू 3, तो लूप के अंदर जाएगा, नहीं, तो फिर बाद वाली लाइन प्रिंट होगा 2। अभी आई का वैल्यू कितना बना 3, 3 लेस देन इक्वल टू 5, ओके, लूप के अंदर आए, इफ के अंदर, हाँ आई का वैल्यू कितना है 3, 3 इज इक्वल टू 3, ट्रू, ओके, तो इफ के अंदर आएंगे, अरे स्टॉप, नहीं नहीं रुको, इफ के अंदर आया, ठीक है। अभी कंटिन्यू क्या करता है, उस करंट इटरेशन के लिए जो भी है उसके बाद वाला कोड, इफ के अंदर वाला कोड नहीं चलेगा, फिर सीधा कंट्रोल जाएगा कहां पर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो आई का वैल्यू कितना बना, तो 3 प्रिंट हुआ क्या? नहीं प्रिंट हुआ। आई का वैल्यू कितना बना 4, 4 लेस देन इक्वल टू 5, ओके, लूप के अंदर आए। उसके बाद फिर इफ के अंदर आएंगे, हाँ इफ का वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल टू 3, ट्रू, फॉल्स, तो इफ के अंदर जाएंगे हम, अरे क्यों जाएंगे, कंडीशन, हाँ नहीं जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद, अरे फाइन नहीं, वो लाइन प्रिंट होगा कि नहीं, अरे कंटिन्यू, 4 इज इक्वल टू 3, फॉल्स, तो वो इफ के अंदर जाएंगे हम, नहीं जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वाली लाइन क्या है, प्रिंट होगा, कंटिन्यू, अरे कंटिन्यू के अंदर क्यों जाएंगे हम, कंटिन्यू जाएंगे कि हम, नहीं, फिर क्या प्रिंट होगा, हाँ आई की वैल्यू कितनी है 4 प्रिंट होगी, ठीक। उसके बाद आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू कितनी बनी 5, 5 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू, फॉर लूप के अंदर आएंगे, ठीक है।
इफ की कंडीशन चेक करो, फॉल्स आएगा, इफ के अंदर जाएगा फिर ठीक है, फिर क्या होगा, स्टॉप नहीं, वो प्रिंट नहीं करेगा क्या वैल्यू? अरे क्यों नहीं करेगा प्रिंट? इधर अभी मुझे बताओ, ये वाली लाइन यहां पर 5 = 3, फॉल्स, फॉल्स है तो इसके अंदर कोड जाएगा नहीं, फिर क्या होगा, ये लाइन चलेगा, यही लाइन चलेगा ना, आउटपुट हमारा 1 2 4 5। Now look at this, i का वैल्यू कितना है अभी 1, तो i = 1, फॉल्स, 2 हो गया, तभी इफ के अंदर नहीं जाएगा, 3 हो गया, यस, तो नीचे वाली लाइन प्रिंट नहीं होगी, i का वैल्यू 4 बना, 4 = 3, फॉल्स, तो कंटिन्यू नहीं होगा, फिर i का वैल्यू प्रिंट होगा, फिर 5, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर रामेश्वर। वन टू, दो वैल्यू प्रिंट होगा, उसके बाद स्टॉप, परफेक्ट। चलो ये प्रिंट करेगा 1 and 2, उसके बाद व्हेन i = 3 इट इज एंड ऑफ मेथड। चलो नेक्स्ट पुष्कर। i का वैल्यू मैंने इनिशियलाइज किया 0, while i is less than 10, ठीक, कितने बार चलेगा ये वाला कोड? हाँ 10 टाइम्स। देखो एक बार फिर से, गड़बड़ क्यों कर रहे हो, आराम आराम से देखो उसको। इन्फिनाइट जाएगा। चलो अब बताओ, 0 to 9, तो कितनी बार कोड चलेगा? हाउ मेनी टाइम्स? 9 बार। क्यों? हाउ मेनी टाइम्स इट इज गोइंग टू रन? 10 टाइम्स। ठीक, इफ i mod 2 is equal to 0, then I am doing continue, ठीक, and after that I am printing I. Now tell me the answer.
सारे ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 3, 5, 7, 9. ठीक है, चलो नेक्स्ट फॉर सम्राट. So I have this loop which is running 1 to 10, and I have another loop that is running from 1 to 10. ठीक. Now if I is equal to, or maybe, yeah, j is equal to 2, break. And after this I am printing okay. What is the output? One one. इतना ही आएगा? श्योर? देखो एक बार उसको प्रॉपर. वन आएगा. ठीक है. So Rupa, can you answer this online? See once again, Samrat. कौन सा लूप? इंटरनल लूप. इंटरनल लूप खत्म होगा एंड बाकी वाला. यस पुष्कर. हाँ, और लूप. कौन सा लूप स्टॉप होगा? सारे लूप. ओनली इंटर लूप स्टॉप होगा. ठीक है, तो बस आउटपुट वन वन ही आएगा या और कुछ आएगा? हम्म, टू भी आएगा? तो मुझे आउटपुट बगा एक बार बताओ पूरा. वन वन ही आएगा बस या और भी कुछ आएगा? 1 to 10 पण येईल. 1 to 10. सर पहले इटरेशन में 1 1 प्रिंट होगा. हाँ, दूसरे में आई का 2 प्रिंट होगा पर जे का 2 प्रिंट नहीं होगा क्योंकि वहां पर ब्रेक आया इसमें. और उसके बाद फिर से 3 3 4 4 5 5 ऐसा होगा.
सिंपल है ना, इतना डिफिकल्ट क्यों लिखे जा रहे हो उसको? वेरी, लेट मी ट्राई दिस. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. आपका ये इंटरनल फॉर लूप है एक पूरा, और ये दूसरा फॉर लूप आपका, राइट. तो आई की वैल्यू कितनी है? 1. ठीक, आ गए यहां पर. व्हेन आई इज इक्वल टू 1, तो यहां पर आ गया इसके अंदर. अब जे की वैल्यू कितनी है? 1. ठीक है. वेदर जे इज इक्वल टू 2, नो, तो प्रिंट क्या होगा? 1 1. ठीक है. जे प्लस प्लस, जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू बनी 2. तो इंटरनल फॉर लूप ब्रेक होगा, तो ये लाइन भी प्रिंट होगा नहीं. तो ये आई एन जे प्रिंट होगा क्या? नहीं होगा. देन आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू बना 2. ठीक. और जे का वैल्यू कितना है? 1. प्रिंट होगा. सेकेंड इटरेशन की बात हो रही है अभी. थिंक ऑफ अ सेकेंड इटरेशन. आई का वैल्यू कितना है? 2. तो अंदर आया. जे फिर से चालू होगा ना, फिर से 1 से, तो जे का वैल्यू कितना है? चलेगा. यस. जे प्लस प्लस, जे प्लस प्लस. रुक गए. तो यहां पर कब रुके थे हम? आई के वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 1, तो जे प्लस प्लस हो गया. रुक गए उधर. सेकेंड इटरेशन आई का वैल्यू कितना है? 2. जे फिर से चालू हुआ 1 से. आई प्लस प्लस, जे जैसे 2 बना ब्रेक, आई का वैल्यू 3. अंदर आए. जे का वैल्यू कितना है? जे बना 2, रुक जाएंगे उधर ही. जैसे 2 बना, रुक गए उधर. ये इंटरनल फॉर लूप बंद हो गया. फिर आई का वैल्यू प्लस प्लस, आई इक्वल टू 4. दैट्स फाइन. आई और जे का वैल्यू फिर से, अरे क्यों होगा? एक ही लूप बंद होगा ना. आई प्लस प्लस, यही वैल्यू प्रिंट होगी. समझे? समझे? ये आपका आउटपुट. जे कभी भी 2 क्रॉस नहीं करेगा. इफ यू लुक एट दिस, समझे? ब्रेक ऐसा नहीं कि पूरा पूरे दोनों भी ब्रेक होगा, बस एक ही लूप ये चलेगा. समझे? ये बहुत बार गलत करते हो आप. एनी क्वेश्चंस ऑनलाइन ऑन दिस? नहीं सर. ठीक है, परफेक्ट. चलो वैभव, तुम्हारे लिए क्वेश्चन. ये चल रहा है 1 to 5. ठीक.
What is the output? I2 झाल्यावर केस 2 मध्ये येईल. केस 2 मध्ये ब्रेक येऊन डिफॉल्ट प्रिंट आहे, कारण की केस मध्ये डिफॉल्ट होतच. गड़बड़ क्यों कर रहे हो? आराम आराम से देखो. बराबर बोला उसने? वो बराबर नहीं बोला. वो तुमने गलत बोल दिया, ऐसे बोल रहे लोग. अरे सर, स्विच केस आहे, स्विच केस मध्ये ब्रेक दिलाय. 2 झाल्यानंतर येईल ते केस मध्ये, पण डिफॉल्ट व्हॅल्यू स्विच मध्ये तर तशी प्रिंट होतेच ना. हाँ, तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट 2 येणार. हाँ, आउटपुट क्या 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 वैल्यू प्रिंट होगा? 2. 2. और बस तेवढंच, कारण की बाकीचे तर केसेस मॅच होत नाहीये. सोचो एक बार फिर से. गुड मॉर्निंग. अरे ये सलोनी. 1345 बराबर. कैसे 1345 है? दीक्षा, कैन यू टेल अस? Yes, can you tell us how it is coming 1345? Look at this code and just try to understand. बहुत ही सिंपल है. अरे एक एक केस जाओ ना. When I is equal to 1, so what is going to happen? Hmm? तो अंदर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, ठीक है. आई की वैल्यू कितनी है? 1. तो स्विच के अंदर कितनी वैल्यू है? 1. तो वेदर केस इज मैचिंग? नो. देन व्हाट हैपेंस व्हेनेवर देयर इज नो केस मैच? डिफॉल्ट. तो 1 प्रिंट हो गया. आई प्लस प्लस. ठीक है. तो स्विच को इनपुट क्या दिया? 2. केस मैच हुआ तो उसके अंदर कुछ है नहीं, तो ब्रेक. तो 2 प्रिंट होगा नहीं. आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू बना 3. 3 यहां पर दिया, तो केस मैच हो रहा है क्या? नहीं. देन 3 विल बी प्रिंटेड. अगेन आई प्लस प्लस, ये 4 मिला यहां पर. केस मैच हो रहा है क्या? नहीं, तो डिफॉल्ट चलेगा. आई प्लस प्लस एंड सो ऑन. सो दिस इज हाउ यू गेट द आउटपुट एज 1345. समझे? यहां पर कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू करेंगे तो भी नहीं, कुछ अलग आएगा. लेट मी टेक दिस एज अनदर क्वेश्चन. नाउ सेम आउटपुट कैसे आएगा मुझे बताओ. चलो नहीं, कौन सा इटरेशन स्किप होगा? हाँ, ठीक है. केस इज इक्वल टू 2. क्या स्किप होगा? पूरा इटरेशन. एंड व्हाट अबाउट अदर केसेस? अगर मैंने इनपुट दिया 1, डिफॉल्ट आएगा. 2, 3, 4, डिफॉल्ट. 5,
ओके, तो 2 जब आता है तब क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग? व्हेनेवर देयर इज 2 स्किप हो रहा है, तो आप, हाँ सेम ही, ऑलमोस्ट सेम ही है, बट देयर इज लिटिल, हाँ सिंटैक्स चेंज बोल सकते हो। सेम कैसे आया, क्योंकि जब भी 2 मतलब 2 दिया, ठीक है। आई एम राइटिंग अ सिंपल क्वेश्चन फॉर Shravani. ठीक, so I'm simply writing a loop that runs so I have commented this, but I have done this for purposefully. Whether this code will compile, whether this code will compile, Shravani. चलेगा? So why it will not work? Because you will get unreachable code error. This will be unreachable code error. Why? ये कभी चलेगा ही नहीं ना, जैसे ब्रेक एग्जीक्यूट होगा, दैट इज एंड ऑफ द लूप, दैट्स इट, राइट? अंडरस्टैंड दिस। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। I is equal to 1 and while I is less than equal to 10, if I mod 2 is equal to 0, I'm doing continue and I have to print and I'm doing I plus plus. So what is this particular program doing? So I want to print odd numbers. Print odd numbers. Whether it will work? Yes, Pushkar. Whether it will work? चलेगा? Yes, Diksha. चलेगा? What is the output? We'll get all even odd numbers from 1 to 10. मिलेगा? Okay. Samrat, can you tell us? मिलेगा? इंक्रीमेंट कब हो रहा है, कब नहीं हो रहा है? चलो एक एक इटरेशन से जाओ, तुम ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, एक एक स्टेप जाओ। I is equal to 1, ठीक है,
अंदर आए, आई मॉड 2 इज इक्वल टू 0, फॉल्स, तो कंटिन्यू होगा क्या? नहीं होगा, तो आई प्रिंट होगा, परफेक्ट। आई प्लस प्लस होगा, यस परफेक्ट, दो बन गया अभी, राइट। नाउ कंटिन्यू होगा, सो आई प्लस प्लस 2 हो गया, तो 2 लेस देन इक्वल टू 10, परफेक्ट, इटरेशन अंदर आ गया। इफ 2 mod 2 इज इक्वल टू 0, ट्रू, कंटिन्यू, देन देन क्या होगा? आई अभी भी कितना है? अरे दो ही, एक एक इटरेशन, पहला इटरेशन तो आप क्लियर कर पाए। आई का वैल्यू 1 है, ठीक है, आई 1 लेस देन इक्वल टू 10, अंदर आए, आई का वैल्यू कितना है? 1, 1 mod 2 इज इक्वल टू 0, फॉल्स। इफ के अंदर आएंगे, नहीं आएंगे, तो आई का वैल्यू बना, आई का वैल्यू प्रिंट होगा, 1 प्रिंट हो गया, और आई का वैल्यू बना 2 लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू, अंदर आए, अब 2 mod 2, ट्रू, अंदर आए, इफ के अंदर कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब नेक्स्ट इटरेशन। अभी आई का वैल्यू कितना है? अरे 2 है ना, 2 mod 2, 2 mod 2 इज इक्वल टू 0, ट्रू, तो आगे जाएगा आपका, तो ये क्या आएगा, क्या प्रिंट होगा? पहले 1 प्रिंट होगा, देन इन्फिनाइट कंटिन्यू, कभी नहीं रुकेगा ये, दिस विल बी इन्फिनाइट। अरे चल रहा है प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम इज रनिंग, वाई? आई कभी चेंज ही नहीं हो रहा, एज आई वैल्यू डज नॉट चेंज। तो कैसे फिक्स करोगे इसे? हाउ टू फिक्स? मुझे ऑड नंबर प्रिंट करना है, तो व्हाट फिक्स यू विल डू? क्या चेंज करना पड़ेगा सो दैट योर प्रोग्राम विल वर्क? क्या करोगे आप जिससे कि मेरा प्रोग्राम चले, ऑड नंबर्स प्रिंट करें? तो कहां पर चेंज करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा? कैन यू टेल मी? ब्रेक, ब्रेक से तो पूरा लूप बंद होगा। क्या करोगे जिससे मेरा प्रोग्राम ऑड नंबर्स दे, 1 to 10? क्या करेंगे? हाँ, कंडीशन नॉट इक्वल टू 0 करेंगे। आई प्लस प्लस को कहां पर? सबसे पहले कंटिन्यू के बाद, कंटिन्यू के बाद कुछ चलेगा? अनरीचेबल कोड एरर आएगा तुम्हें, तो सबसे पहले इसको सबसे पहले लेके जाओ ना। एनीवे यू आर गोइंग टू डू प्लस प्लस, राइट, प्रिंट करने से पहले, तो यहाँ पर मतलब क्या कर सकते हो आप? हाउ आर यू गोइंग टू फिक्स दिस? एक काम कर सकते हो आप, नॉट इक्वल टू 0 करो, तभी प्रिंट करो अगर है तो, दैट्स इट। लेकिन मुझे कंटिन्यू ही यूज करना है,
इफ आई वांट कंटिन्यू तो कैसे करोगे? मुझे यहां पर कंटिन्यू ही यूज करना है, कहां पर आई प्लस प्लस करोगे? कंटिन्यू से पहले? while के बाद सर और if के बीच में। व्हाइल के बाद? So, find out how are you going to do that. आई वांट कंटिन्यू, कंटिन्यू मुझे चाहिए और आप जैसे करना है वैसे करो, ठीक है? सर while लूप के बाहर करेंगे आई प्लस प्लस, कहां पर? लूप के बाहर। लूप के बाहर? तो लूप कभी, लूप कैसे करोगे? Find out this. How are you going to do that? Think we are good with the concepts. So I will stop the class recording and we'll do some other stuff.